हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज गुड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मून राशि के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ एज पर माय नॉलेज। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लास्ट राशि ऑफ द zodiac. The last rashi is called Mean or Pisces. What is Mean Rashi? When a person is born and his moon sign is in 12 Rashi, and it is also the 12th house of the Kal Purush Kundli, is called a Piscean. The Rashi is represented by a pair of fishes. This Rashi's lord is Jupiter. So, Jupiter being the lord, this Rashi has all the sattvic gunas. Jupiter has two Rashis, 9 and 12, Sagittarius and Mean. So, what is the difference between Sagittarius and Mean? Both are of Jupiter's Rashis. Yes. Jupiter, Sagittarius Rashi is a fiery Rashi, and there is a great difference. Mean Rashi is a watery sign. Its element is water, whereas the element of Sagittarius Rashi is fire. So lot of difference, just opposite they are. Right? Now 1, 5, 9. These are the three fiery signs. 4, 8 and 12. These are the watery signs. And Piscean is holding number 12 sign. Because it is the watery sign, it is a very emotional Rashi. Cancer Rashi, 8 Rashi, Scorpio and Mean all are watery sign. But there is a difference. The Rashi, Cancer Rashi, is a very emotional Rashi and is nourishing Rashi. Has motherly touch. All qualities of a mother are in Cancerian people. Then comes the Scorpio. Yes, this is also an emotional राशि. वाटर है ना, वाटर तो बहता है, बहेगा तो क्या होगा? Emotions. In Scorpio, there is a turbulence of emotions, sometimes very high, sometimes very low. And when it comes to Mean Rashi, where is fish? Mean means fish. Where is fish found? It is found in ponds, rivers, and ocean. Our thinking and our emotions become very deep. These all things depend our thinkings, what we want, what are our desires, how is our relation with the mother. These are all represented by moon. And now moon is in watery sign, watery Rashi. So everything becomes like water. Emotions are like water. But in Piscean, they are very deep. As the fish is in water and it goes deep into the sea. Thoughts are very deep. They are very sensitive people.
The people belonging to Pisces Rashi are very sensitive, very romantic, very moody, very loyal, very passionate, very tender, and they have positive attitude. Sorry, not aptitude, attitude. This moon sign has 3 nakshatras. What are they? First one is Purva Bhadrapad, Uttar Bhadrapad, and Revati. First nakshatra, Purva Bhadrapad. The people belonging to this nakshatra, what they represent? They represent a strong desire to achieve the things which is not possible. ऐसी चीज की वो इच्छा कर लेते हैं जो पॉसिबल नहीं है, रेयरली अचीवेबल है. लाइक अगर मैं कहूं कि मैं चंद्रमा पर पहुंच जाऊंगी, इज इट सो इजी? नो, इट्स नॉट सो इजी. मून पर वी कैन गो, बट it's not certain that we'll reach there, but they say we'll reach. ऐसी चीजों की जो इजीली अवेलेबल नहीं है, अचीव नहीं कर सकते, ऐसी चीजों की वो इच्छा कर लेते हैं. एंड देन कम्स उत्तर भाद्रपद. इसमें क्या होता है? द पीपल बिलोंगिंग टू दिस नक्षत्र, दे लीव मोह माया से वो अलग होना चाहते हैं, वो मोक्ष पाना चाहते हैं, वो दूर रहना चाहते हैं, वो किसी के मोह में नहीं पड़ना चाहते, उसका मोह का अंत करना चाहते हैं. दे वांट टू एंड इट. एंड द थर्ड वन इज रेवती नक्षत्र. द पीपल बिलोंगिंग टू रेवती नक्षत्र, दे शो द पाथ. दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, कोई भी काम करने के लिए मदद करते हैं रेवती नक्षत्र वाले लोग. लेकिन इन नक्षत्रों के बारे में विल स्टडी इन डिटेल सेपरेटली. तो आज के वीडियो में ये नक्षत्रों का बारे में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी, अदरवाइज हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा एंड वीडियो विल बी टू लॉन्ग. द पीपल बिलोंगिंग to Pisces Rashi, because they are very emotional and romantic. बड़ी जल्दी जल्दी उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. तो बदलने से उनकी लाइफ स्टैटिक नहीं रहती. अगर वो किसी जॉब में भी हैं तो दे वांट सम चेंज, कि चलो अब ये बहुत हो गया, अब दूसरा काम करते हैं. फिर वो बिजनेस में चले जाएंगे, फिर वो घर का काम करने लगेंगे, फिर वो समाज सेवा करने लगेंगे, फिर वो हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब करना चाहेंगे. दे वांट टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क. एक काम पर वो रुकते नहीं हैं. और डिसीजंस इतनी, मतलब दे जंप टू कंक्लूजन, बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, बहुत हेस्टी होते हैं इस मामले में. इस कारण क्या होता है, उनके ज़्यादातर जितने भी डिसीजन से लगभग 90% डिसीजन हेस्टीनेस के कारण गलत हो जाते हैं. तो इस राशि वाले लोगों को वी सजेस्ट कि अपने डिसीजन लेने में इतनी जल्दी ना करें कि आपको पछताना पड़े. यू टेक डिसीजन, सोचो समझो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो, अदरवाइज मोस्टली वो गलत हो जाते हैं. कोई भी लेगा जल्दी में डिसीजन तो गलत तो होगा, बट इट्स देयर नेचर. रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं, लवेबल है, एंड उनका जो प्यार करने का तरीका है बड़ा कोमल है, बड़ा टेंडर है. वो जिसको भी प्यार करते हैं बड़े टेंडरनेस से, बड़े प्यार से, बहुत ही डेलिकेटली उनका लव है, उनका अफेक्शन है. ये लोग
कंफर्ट्स में रहना चाहते हैं। अगर इनको जरा भी डिस्कम्फर्ट होगी तो ये वहां से भागने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर इनको कपड़ा पहनना है तो बहुत ही फाइन होना चाहिए, इनकी पसंद का होना चाहिए। अगर इन्हें खाना खाना है तो खाना भी इनकी चॉइस का होना चाहिए। जहाँ अगर कहीं रहने के लिए है तो वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इनको कंफर्ट पसंद है, डिस्कम्फर्ट इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। सपोज़ अगर हमने इनको चाहे कितना भी कॉस्टली कोई भी कपड़ा है और इनको पहनने को दिया या गिफ्ट किया, इनको पसंद नहीं है या दे फील डिस्कम्फर्ट, तो ये उसको 1 सेकंड में उतार के फेंक देंगे। देयर फीलिंग्स फॉर पीपल आर वेरी टेंडर। वो इस प्लेन पे रहते ही नहीं है, वो हायर प्लेन के बंदे हैं। उनको यही नहीं पता कि लव एंड अफेक्शन ये टू साइड मैटर है। उनको समझ ही नहीं आता। वो अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि वो मुझसे दूसरा बंदा मुझसे ऑपोजिट साइड मुझे क्यों नहीं प्यार कर रही। इट इज अ टू साइड मैटर जो जनरली लोगों को समझ आ जाता है। बट जो चीजें हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो इन लोगों को इतनी दिखाई नहीं देती हैं, वो इन्हें पता ही नहीं लगता है। तो समटाइम्स दे गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस नेचर। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज होती हैं, जिनके आइडियल स्ट्रॉन्ग होंगे, जो स्मार्ट होंगे, स्मार्टली बिहेव करते हैं, उनसे तो ये बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, अपने आप ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनको सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर ये किसी अच्छी सराउंडिंग में हैं तो ये उसको फट से ग्रास्प कर लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वाइब से बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में बैठे हैं तो एकदम से नेगेटिव हो जाएंगे, किसी पॉजिटिव में होंगे तो इनका चेहरा एकदम से ग्लो करने लगेगा, बड़ी खुश हो जाएंगे। हर एक के दुख दर्द को अपना समझने लगते हैं। अगर आपकी परेशानी है तो वो इनकी परेशानी बन जाएगी और इतने स्ट्रेस्ड हो जाएंगे कि आप भी कहेंगे अरे क्या हो गया। इनको नींद नहीं आएगी जब तक कि उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे। दे आर वेरी गुड हीलर्स, काउंसलर्स, नर्चरर्स, नर्सिस। ये बहुत अच्छे से नर्स करते हैं, बड़े डेलिकेटली आपको प्यार करते हैं, आपके प्रति लॉयल रहते हैं। आपकी आपको जो भी मदद करना चाहते हैं, जो आप मदद चाहते हैं, ये आपको वो मदद करेंगे, पैसे से भी करेंगे, प्यार से भी करेंगे। आपका आपका दुख दर्द अपने ऊपर ले लेंगे। इनको हमेशा ये लगता रहता है इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा ये सोचते रहते हैं समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। हमेशा इनको ये फीलिंग होती है और इस वजह से इनके पार्टनर्स कई बार फील करते हैं कि यार इनके लिए क्या करें जो ये खुश हो जाएं। परेशान हो जाते हैं ये। इनके पास ज्ञान भी है, इनके पास प्यार भी है, इनके पास पैसा भी है, इनके पास कंफर्ट भी है, इनके पास लॉयल्टी भी है, सेंसिटिव भी है। सब लोग इनको लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक अपने अंदर सूनापन सा नजर आता है, क्योंकि ये इस वर्ड को बिलोंग ही नहीं करते ना। ये तो अपर प्लेन में रहते हैं, तो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि मेरे में क्या मिसिंग है, कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और इनको ये भी नहीं पता कि वो किस रास्ते पे जाकर उसको ढूंढ कर लाना है, कहाँ जाना है। जैसे कि मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, तो वो सारी चीजें इनको अपने अंदर ही मिलेंगी जिसकी ये खोज में है, लेकिन वो इनको नहीं मालूम होता। ये बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। और ज्यादा स्पिरिचुअल होने की वजह से कई बार इनको लोग ऑर्थोडॉक्स भी समझने लगते हैं कि दीज पीपल आर वेरी
ऑर्थोडॉक्स। एंड ये इनको चेंज बड़े जल्दी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं घर में काम कर रहे हैं, तो जरा सा भी चेंज होगा तो ये परेशान हो जाएंगे। दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि इमोशनल हैं, दे आर अफेक्शनेट, तो इनके लिए जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत मीनिंगफुल है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। मतलब इनके भाई बहन, माता पिता, रिलेटिव्स, ये सभी इनकी स्ट्रेंथ है। ये इनका प्लस पॉइंट है। ये अगर अच्छी संगत में रहेंगे तो उसकी क्वालिटीज एक्वायर कर लेंगे। अगर बुरी संगत में गए तो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनको एडवाइस किया जाता है दे शुड ऑलवेज सिट इन गुड सर्कल। ये राशि क्योंकि मेष से लास्ट की राशि है, 12वीं राशि है, इन्होंने सब कुछ देखा होता है। इनकी बहुत कोई ऐसी डिजायर्स नहीं होती और ना ही आप ये कह सकते कि इनमें कोई पर्टिकुलर आप इनका गुण नहीं कह सकते। ऐसा कहा जाता है कि मेष से लेकर और मीन तक इनमें सभी राशियों के थोड़े थोड़े गुण पाए जाते हैं। और बिकॉज इट्स लॉर्ड, दिस राशि's लॉर्ड इज जुपिटर, तो ये बहुत सात्विक होते हैं, काउंसलर होते हैं, उपदेशक होते हैं, हीलर होते हैं। आप कितने भी परेशान हैं, आप इनके पास बैठ जाइए तो ये आपको आपको लगेगा कितनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये आपको आपकी काउंसलिंग कर देंगे, आपको समझा देंगे, आपकी प्रॉब्लम का हल बड़ी आसानी से निकाल देंगे। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ मनी, इसीलिए जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं तो पैसे का इनको लालच नहीं है। काम करेंगे, थोड़ी देर बाद वहां से मन हट जाएगा, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। पैसा कमाना इनके बस की बात नहीं है, बिकॉज ये तो स्पिरिचुअल है ना। आप इनको मेडिटेशन के लिए भेज दीजिए, आप इनको उपदेश देने के लिए भेज दीजिए, तो ये वहां सक्सेसफुल होंगे। कोई बीमार है उसके पास भेज दीजिए। दे लाइक एंटिक चीज, हिस्ट्री को लाइक करते हैं। हिस्ट्री में वृद्ध लोग भी आते हैं, ये जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको भी लाइक करते हैं। हिस्ट्री, कोई कोई राज्य कैसे बना, राजा कौन था, उसकी प्रजा कैसे थी, ये सब इनके पास हिस्टोरिकल सारी चीजें मिलेंगी आपको। हिस्टोरिकल बर्तन, हिस्टोरिकल कपड़े, कॉइन्स, इनकी कलेक्शन इनके पास होती है बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। अब लोग इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर देते हैं क्योंकि ये पक्षपात नहीं करते ना। आप जो इनको कहेंगे ये उसको सच समझ कर बैठ जाते हैं। तो अगर ये सपोज मैं हूं और मेरे से ये प्यार नहीं कर रहे एंड आई वांट कि मैं इनको अट्रैक्ट करूं, तो ये बड़ी जल्दी से ब्लैकमेल हो जाते हैं। और जो टैक्ट और दे आर इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच बाय द नेचर। सपोज मैं इनको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं इनको अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ, और जो मैंने टैक्टिक्स अप्लाई करी हैं इनको इम्प्रेस करने के लिए, वो ये अपने अंदर उतार लेते हैं। मीन्स
कि नेक्स्ट टाइम अगर इनको, जैसे मेरे को किसी ने इम्प्रेस किया है, अगर इनको किसी पर्सन को इम्प्रेस करना होगा तो ये वही वाली टैक्टिक्स लागू कर देंगे। ये दूसरे को भी, जैसे मैं ब्लैकमेल हुई, ये दूसरे को भी वैसे ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। ये इनकी नेचर में शामिल हो जाता है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। एंड these people, they have deep thoughts, क्योंकि मछली जो है वो समुद्र में रहती है, पानी के अंदर रहती है, तो इनकी थॉट्स इतनी डीप होती हैं, जैसे कि आप डुबकी लगाकर उसमें से जब हीरे मोती निकाल कर लाते हैं, उसी तरीके से इनकी थॉट्स भी इतनी डीप होती हैं। दे हैव वेरी सेंसिटिव एंड डीप थॉट्स। ये इसकी एक क्वालिफिकेशन है मीन राशि की। ये दे आर वेरी एपैथेटिक पीपल। इनको पता लगना चाहिए कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो दे विल गेट स्ट्रेस्ड और आपका दुख अपने सिर पर ले लेंगे, अपने दिल में ले लेंगे, और जब तक आपकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर देंगे तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। दे आर वेरी प्योर हार्टेड और एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने प्योर ये हैं तो दूसरा बंदा भी उतनी प्योरिटी से इनसे पेश आए, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बिकॉज जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है बड़ी आसानी से हम जान जाते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि कोई इनसे चालाकी कर रहा है। दे आर एट ए वेरी हाई लेवल, हायर प्लेन पर हैं, इनको दुनियादारी का मालूम ही नहीं है। और फिर जब सेटबैक लगता है, जब ये, इसलिए ये धोखा भी खा जाते हैं, और जब धोखा खाते हैं तो डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और वाटरी साइन होने की वजह से अगर ज़रा भी ऊंच नीच हुई, किसी ने धोखा दिया या किसी ने इनको नहीं समझा, तो ये मछली की तरह तड़पने लगते हैं। अब जब मीन राशि का मतलब ये हो गया कि हमारा जो चंद्रमा है, व्हेन वी वर बोर्न, तो पाइसियन में चला गया, 12 राशि में चला गया, जो कि एक पानी की राशि है, जल तत्व है। तो इमोशंस बिल्कुल जल की तरह होते हैं। दुख देखा तो आप इनसे बात कर रहे होगे तो पता लगेगा कि इनकी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे होते हैं। इसको मोक्ष की राशि भी कहा जाता है जनरली, क्योंकि लास्ट राशि है ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब ये इनकी ऑलमोस्ट डिजायर्स खत्म हो चुकी होती हैं, सब कुछ इन्होंने दुनिया में देख लिया होता है, और दे मे और दे मे नॉट गेट, बट ऐसा कहा जाता है पाइसियंस को जनरली मोक्ष मिल ही जाता है। दे आर वेरी गुड एट आर्ट, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, इसका शौक होता है। शौक क्या होता है, ये इसमें हाई लेवल पे होते हैं, माहिर होते हैं इसके, इनक्रेडिबली स्पिरिचुअल होते हैं, उपदेश दे सकते हैं, टेम्पल्स में अपनी जगह बना सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, और जो भी इनके पास रिलेटेड टू रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म इनके पास नॉलेज होती है, उसको ये यूज करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं और ईश्वर को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई लोग तो इनको इस वजह से ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। These people are very imaginative. So, in nutshell,
they are very emotional people belonging to the upper heavenly level. उसके ही सारे गुण होते हैं, बड़े टेंडर लविंग, प्यार, बड़े प्यार से आपके साथ पेश आएंगे, धोखा खा जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, दुनियादारी इनसे कोसों दूर होती है, पैसा ये कमाने में माहिर नहीं होते, कंफर्ट्स, बस एक सबसे ज़्यादा इनका कंफर्ट्स का है, कंफर्ट्स तो इन्हें चाहिए, कंफर्ट्स नहीं मिलेंगी, वो चाहे कंफर्ट किसी भी टाइप की हो, बड़े होटल में रहना, अच्छे कपड़े, बस मतलब होटल भी आप छोड़िए, इनको जहाँ पे सुकून मिले, शांति मिले, वहाँ ही रहना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मीन राशि। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी आती हूँ एक नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, बिकॉज आज मैंने ज़ोडिएक की सभी राशि खत्म कर दी है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आप आजीवन आप लोगों को ज्ञान देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, वंस अगेन, एंड एनी इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पूरी 12 राशि मैंने करा दी हैं, मून रैशेस। कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। जल्दी आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी so patiently. Till then, bye bye.